Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 35th lecture of Material Science and Metallurgy. So, in the previous series of the chapter or lecture, we try to complete the last previous chapter, which is the phase diagram and the phase equilibrium, right? So, in this chapter, we try to understand about the basic things about the phase diagrams and the various reactions, the basic eutectoid, eutectic, peritectic, and peritectoid reactions of the phase diagram, and what is happening during the reactions of the phases during the phase diagrams while we are giving the heatings and the coolings to your material. So, in today's lecture, we try to start the another one new chapter of your material science and metallurgy, and this is the last chapter of your syllabus, which is the allotropy of iron. As per your syllabus, this is the chapter number 6, and today we start the last chapter of material science and metallurgy. I hope you all are uh, getting the proper knowledge with the series of the lectures. So today we start the last chapter of the material science, which is the allotropy of iron. So first we start the basic understandings with the iron. Now what is the iron, right? So we start the introductions. So the iron is a chemical elements with the symbol of Fe from the Latin language. Latin language से जो है ये Fe symbol लिया गया है, which is the ferrum, and the atomic number, which is 26. It is a metal in the first transitions of the series. Oxidation states, like the other group 8 elements, the iron is exist in the wide range of oxidation state, -6 to +6, although the +2 or +3 is the most common in the oxidation states. So the pure iron is a soft, which is softer like the aluminum. जो प्योर आयन रहता है ना, आप जो हमेशा आपने जो देखा होगा, जो सुना होगा, विच इज़ ऑल अबाउट दी कॉमर्शियल काइंड ऑफ द आयन्स, राइट? पर जो प्योर आयन रहता है, विच इज़ दी सॉफ्टर देन द एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल, राइट? आप उसको अगर आपके पास कोई एल्यूमिनियम का स्ट्रिप है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, तो आप इजीली जो भी शेप के अंदर आप उसको फॉर्म करना चाहते हो, वो शेप के अंदर आप उसको फॉर्म कर सकते हो. तो इसी तरीके से जो प्योर आयन रहता है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, बट दी अनऑप्टेनेबल बाय दी स्मेल्टिंग. पर उसको जो है वो उसको प्योर फॉर्म में जो पाना है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. द मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली हार्डन्स एंड द स्ट्रेंथन्स बाय द इम्प्योरिटीज़. जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं, उससे जो है वो मटेरियल जो है एक तरीके से हार्डन होता जाता है, स्ट्रेंथन होता जाता है, राइट? सच एज ए कार्बन फ्रॉम दी स्मेल्टिंग प्रोसेस. जैसे उसके अंदर कार्बन जो है एज ए इम्प्योरिटीज़ मिलता है, राइट? तो वो जो है वो कार्बन उस प्योर आयन को जो है वो उसको एक तरीके से हार्डन बना जाता है और एक तरीके से उसको स्ट्रेंथन बना जाता है. हिस्ट्री. द आयन मेटल हैज़ बीन यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम, राइट? एक तरीके से बहुत पुराने काल से जो है ये आयन जो है वो यूज़ होता है. दो द कॉपर एलॉय which have a lower melting temperatures were used first in the history. पर आयन से पहले जो है एक तरीके से कॉपर ऐसा एलॉय था जो आयन से पहले यूज़ होता था उसके लोअर टेम्परेचर की वजह से. इट इज़ दी डिस्कवर्ड सिंस इन दी 5000 BC. So characteristics and the mechanical properties of the ions. The mechanical properties can be determined by the varieties of the tests, like the Brinell testing. इसकी जो है वो ब्रिनेल टेस्ट से जो है उसकी हार्डनेस हमें पता चल जाती है. रॉकवेल टेस्ट से उसकी हार्डनेस पता चल सकती है. विकर टेस्ट से जो ये जो है ना, रॉकवेल, ब्रिनेल और आपका विकर, ये जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दी हार्डनेस टेस्ट है. इसकी हेल्प से जो है वो हम लोग हार्डनेस उसका मेज़र कर सकते हैं, राइट? The mechanical property of the ions are the significantly affected by their simple purity, right? उसकी जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं. तो फेज डायग्राम्स एंड द एलोट्रोपी. अब यहाँ पे इसका जो इस चैप्टर का जो नाम है ना, उसके ऊपर हम लोग धीरे से
वहाँ पे डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। द विच इज़ द मीनिंग ऑफ द एलोट्रॉपी, यानी आपको पहले आयन समझना पड़ेगा और एलोट्रॉपी समझनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है इस चैप्टर का सबसे जो कोर थिंग है और मटेरियल साइंस का जो सबसे बेसिक थिंग है, जिसके बिना जो मटेरियल साइंस है आप समझ नहीं सकते, विच इज़ द आयन कार्बन डायग्राम, राइट। अब उसके बाद जो है वो आपको आयन कार्बन डायग्राम इस, यानी ये चैप्टर से आप लिख के लीजिए कि आपके GTU के पेपर के अंदर आपको IC डायग्राम पूछा जाना है, यानी 100%। ये 7 मार्क का क्वेश्चंस जो है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस जो है वो पूछा ही जाना है, राइट। सो now we move forwards to the basic things about the allotropies. So the phase diagrams and the allotropies. The ion which is represents an examples of the allotropy in the metal. आयन जो है वो मेटल के अंदर जो है वो एक एग्जाम्पल रख रहा है एलोट्रोपिक है, राइट। दैट इज़ द लिस्ट ऑफ द 4 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयन विच इज़ नोन एज ए, एक तरीके से मेटल के जो है जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, राइट, छोटे छोटे एक तरीके से जिसके जो फॉर्म्स है वो डेवलप्ड होते हैं, वो जो है वो आपके सामने धीरे धीरे आते रहते हैं। सो देर आर at least 4 allotropic form of the ion, which is the alpha ion, gamma ion, delta ion and epsilon ion, right? So as the molten metal cools, जैसे जो molten metal जो गर्म किया हुआ metal है वो जैसे जैसे cool होता जाए, it crystallizes at 1538 डिग्री सेल्सियस इनटू इट्स दी डेल्टा एलोट्रॉप्स, यानी एक जो है वो आयन का फॉर्म्स है विच इज़ दी डेल्टा आयन, राइट। एज द मोल्टेन मेटल इट क्रिस्टलाइज, राइट, जब मोल्टेन मेटल जो है उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं एट दी 1538 डिग्री सेल्सियस इनटू दी डेल्टा एलोट्रॉप्स विच हैज़ ए बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तब उसके पास जो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो BCC स्ट्रक्चर रहता है। एज इट इज़ कूल डाउन फर्दर, और उसके बाद जो जैसे वो 1500 आयन जो है ना उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 1430 के ऊपर रहता है, 1500 डिग्री के आसपास रहता है। जैसे 1500 पे उसका कूलिंग स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट जैसे ही उसका जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा विच इज़ दी जो एलोट्रॉप, जो हमें एक तरीके का आयन वहाँ पे मिलेगा विच इज़ कॉल्ड एज ए डेल्टा एलोट्रॉप्स, राइट। और उसके अंदर जो आयन का स्ट्रक्चर होगा वो BCC स्ट्रक्चर होगा। एज इट इज़ कूल, राइट, जैसे वो ज़्यादा ठंडा होता जाएगा एंड जैसे वो 1300 या फिर 1400 के आसपास पहुँचेगा डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इट इज़ चेंज इट्स टू दी गामा आयन एलोट्रॉप, तब वो जो है वो चेंज हो जाएगा, अब उसका जो स्टेट हो जाएगा वो गामा आयन का हो जाएगा। एंड द स्ट्रक्चर जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा विच इज़ द FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके पास अब स्ट्रक्चर होगा वो FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा एट द 912 डिग्री, यानी जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया आपका। अब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और उसके बिलो के टेम्परेचर के आसपास द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज अगेन द BCC। अब उसके बाद 923 या 912 और उसके आजू बाजू के टेम्परेचर के ऊपर जो है उसका स्ट्रक्चर जो रह जाएगा वो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो एक तरीके से BCC स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब उस BCC स्ट्रक्चर के अंदर उसका जो BCC स्ट्रक्चर के अंदर उसका फिर से वो जो स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा वो जो है वो अल्फा आयन। अब उसका थर्ड स्टेट, फर्स्ट क्या था डेल्टा से जो चेंज होके 1300 के आसपास हो गया गामा आयन। गामा आयन से फिर से वो 900 डिग्री के आसपास जब वो पहुंचा तब उसका अल्फा आयन एलोट्रोप जो है वो जनरेट होता है और उसका स्ट्रक्चर जो रहता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो फिर से BCC हो जाता है और उस स्टेट जो है वो फाइनली फेरेट स्टेट से पहचाना जाता है। अब जैसे फाइनली एट द 777 डिग्री द प्योर और वी कैन से दैट द क्योर पॉइंट स्विचेस स्टार्ट्स। अब उसके बाद जो है क्योरिंग पॉइंट, आप उसको क्योर कर सकते, वो पॉइंट जो है वो
770 डिग्री के ऊपर वो जनरेट होता है। नाउ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? सो आइसोट्रॉप्स फाइनली नेचुरली अकरिंग आयन विच इज कंसिस्ट ऑफ द 4 स्टेबल्स, राइट? जो नेचुरली हमें आयन मिलते हैं वो 4 स्टेबल फॉर्म में मिलते हैं, आइसोटॉप्स में मिलते हैं, राइट? सो ये जो हमें मिलता है जिसके अंदर आयन्स होता है वो एक तरीके से 5% एंड 845% ऑफ द आयन, राइट? सेकेंड विच इज़ द 91% जो है वो अप्रोक्सीमेटली आयन रहता है, एक 2% के आसपास और एक 0 पॉइंट। ऑफ कोर्स ऑफ दिस स्टेबल आइसोटॉप्स ओनली द 57Fe हैज़ अ न्यूक्लियर स्पिन, इसके अंदर ही एक न्यूक्लियर स्पिन होता है। द न्यूक्लिड Fe is predicted to undergo the double beta decays. Now अब इसके बाद जो है वो हमने बेसिक आयन के बारे में अभी स्टडी हमने कर लिया। जैसे आयन का मैंने आपको इंट्रोडक्शंस दिया। अब उसके बाद जो आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक थिंग्स जो है वो आपको समझनी है, वो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी आपके आयन कार्बन डायग्राम। अब आयन कार्बन डायग्राम बेसिकली है क्या, राइट? आयन कार्बन डायग्राम से हमें क्या चीज़ जो है वो पता चलती है, किस लिए जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इसका इम्पोर्टेंस है, जिससे जो है हम लोग फ्यूचर में ये काफ़ी क्यों इसको बोला जाता है कि मटेरियल साइंस के अंदर जो है वो बेसिक थिंग्स जो है वो अगर आपको आईसी डायग्राम पता चल गया तो बाकी चीज़ जो है वो आप धीरे धीरे समझ सकते हो, यानी दैट इज़ द हार्ट ऑफ द मटेरियल साइंस इन मेटलर्जी। सो we can start the more discussions on the iron and iron carbon diagram. So this is the basic of the iron and iron carbon diagram. You can see here the iron carbon diagram. एक तरीके से आपको वो प्लॉट कैसे किया जा सकता है, तो आपके जो मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर द परसेंटेज ऑफ द कार्बाइड्स और द कार्बन जो है वो वहाँ पे इंडिकेट किए जा सकते हैं, और आपके वाई एक्सिस के ऊपर जो है, वाई एक्सिस के ऊपर आपका टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर वहाँ पे आपका इंडिकेट किया जा सकता है। अब इस फोटोग्राफ के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि कैसे कैसे जो है वो एक तरीके से यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं। यानी आप नीचे से स्टार्ट कर दिए तो परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो जहाँ तक आपके आयन के अंदर है, आपके आयन के अंदर द परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज़ लिमिटेड टू द 2%, द लिमिटेड्स अप टू द 2%, जब तक उसका परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो 2% तक है, उस चीज़ को जो है वो स्टील बोला जा सकता है। और स्टील के अंदर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर आप लेते जाइए कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस जो है वो डेवलप्ड होते हैं। अब दूसरा एक चीज़ जो है वो जैसे ही द परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज़ इंक्रीज मोर देन 2%, अब जब वो 2% से लेके 6% तक जो कार्बन परसेंटेज रहता है, तो फिर जैसे 2% तक जो है वो आपको मिलता है, जो भी आयन मिलता है विच इज़ डेजिग्नेटेड एज अ स्टील, उसी तरीके से जिसके अंदर द परसेंटेज ऑफ द कार्बन विच इज़ मोर देन 2% और अप टू द 6%, दैट विच इज़ नोन एज ए कास्ट आयन। अब वो जो है वो कास्ट आयन जो है वो पहचाना जाता है। अब उसके अंदर जो है वो अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस के अंदर जो अलग अलग जो है उसके फेजेस जो है वो आपको डेवलप्ड होते दिख रहे होते हैं, राइट? अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको जो है वो एक तरीके से आपको 2 लाइन दिखेगी। एक लाइन आपको दिखेगी विच इज़ वेरी अप्रॉक्सीमेटली टू दी 700 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, और एक आपको दिखेगी 900 डिग्री सेंटीग्रेड। आप टेम्परेचर यानी राइट हैंड साइड से ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो पूरा जो है वो टेम्परेचर के अंदर डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बता रहा हूँ। तो आप अप्रोक्सीमेटली 600 से ऊपर देख लीजिए, जो 900 डिग्री के टेम्परेचर वाला जो लाइन है वो यानी आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो फ़ारेनहाइट के अंदर जहाँ पे
1600 वाला जो एक नॉच जैसा पार्ट बन रहा है ना, वो आप जैसे उसको हॉरिजॉन्टल खींच लोगे तो वो 900 डिग्री के आसपास रहेगा। तो विच इज़ डेजिग्नेटेड एज अपर क्रिटिकल लाइन। और फ़ारेनहीट की अगर मैं बात करूँ तो जो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 1200 सेंटीग्रेड पे आप लाइन अगर खींच लेंगे तो वो लाइन रहेगा विच इज़ द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। अब वहाँ पे जो है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वैसे अलग अलग फेजेस जो है वो डेवलप्ड होते जाएंगे। जैसे आपके पास प्योर आयन ऑफ स्टील है, राइट, उसको आप उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है विच इज़ अराउंड दी 1500 डिग्री के आसपास उसका रहता है। जैसे वो 1500 डिग्री के आसपास जो है वो उसके अंदर जो उसके स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, वो स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो मिलते जाएंगे। अब वो स्ट्रक्चर्स जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ हम लोग रिलेट करते जाएंगे। तो आप बेसिकली आपने अभी इतना समझ लिया, तो जैसे जैसे जो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद जो है वो अब और एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जिस थी ये एक तरीके से फेज़ डायग्राम ही है, राइट। ये एक तरीके से फेज़ डायग्राम है। यहाँ पे आप दो चीज़ देख सकते हैं, राइट, दो चीज़, एक तो सॉलिडियस, एक जो है वो सॉलिडस पार्ट, एक जो है वो लिक्विडियस लाइन। तो आप देख लीजिए कि बेसिकली जो है वो पोर्शंस विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1600 डिग्री के आसपास ये आयन का है। तो आयन जो है वो प्रॉपरली 1600 डिग्री के आसपास जो है वो प्रॉपरली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके नीचे वाला पोर्शंस आप देख लीजिए, जो नीचे वाला पोर्शंस रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 200 या 300 डिग्री के आसपास, 200 या 600 के बीच जो है वो एक सॉलिड पोर्शंस आपके पास, वहाँ पे जो है वो अल्फ़ा आयन कार्बाइड जो है वो आपको लिखा हुआ दिया गया है। उसके अंदर जो उसका फेज़ रहता है वो परलाइट पर कार्बाइड वाला फेज़ रहता है। अब वहाँ पे जो है वो आपको मिलेगा, वो आयन जो होगा वो प्योरली सॉलिड आयन मिलेगा। अब बेसिकली एक टेम्परेचर लिमिट ऐसा आएगा जहाँ पे जो है ना तो वो जो है वो प्रॉपर लिक्विड स्टेज में होगा, ना तो वो प्रॉपर सॉलिड स्टेज में होगा। तो आप अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए कि 1000 मोर देन 1000 डिग्री के ऊपर जो है वो 1000 यानी 1200 के ऊपर आप एक स्टेज ऐसा आएगा, एक यूटेक्टिक स्टेज आएगा। उस यूटेक्टिक स्टेज के अंदर जो है वहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे जो प्योर आयन जो है वो जो स्टील है या फिर आपका कास्ट आयन है वो एक ऐसे फॉर्म में हो सकता है जहाँ पे ना तो वो प्योर कंडीशन में स्टील है, ना तो वो प्योर कंडीशंस के अंदर लिक्विड है। तो इस तरीके से वहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे एज एन इन्फॉर्मेशंस मिल रही है। अब उसके जो सारे फॉर्म्स डेवलप्ड हो रहे हैं, जैसे एक तरीके से वो स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, ऑस्टेनेट स्ट्रक्चर, ऑस्टेनेट स्टील है, फेरेटिक स्टील है, परेटिक स्टील्स है, राइट। वो स्टील जो है वो हम लोग धीरे धीरे इसके साथ उसको रीड कैसे किया जा सकता है उसके साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो इसके अंदर बेसिक आउटलाइंस के अंदर जो है वो हमने इंट्रोडक्शंस देखना है, कूलिंग कर्व्स ऑफ द प्योर आयन्स हमें देखना है, डेफिनेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स हमें देखना है, द आयन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम विच इज़ द स्केचेस, द आयन carbide diagram are explanations, the ostinates to ferrites and cementite transformations, nucleations and the growth of the perlite, the effect of the percentage of carbon on the microstructure of the steel, then the relationship between the percentage of carbons each and the mechanical properties of the steel। इतनी चीज़ जो है वो हमें बेसिक फॉर्म्स के अंदर हमें यहाँ पे सीखनी है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें विच इज़ द कूलिंग कर्व ऑफ द प्योर आयन। प्योर आयन जो रहता है उसका कूलिंग कर्व जो है वो कैसे रहता है, तो प्योर आयन जो है उसका कूलिंग कर्व यानी एक तरीके से उसका फेज डायग्राम हम लोग प्लॉट करें तो वो टेम्परेचर वर्सेस टाइम के ऊपर फॉर्म किया जा सकता है। जैसे आपका टेम्परेचर जो है वो जैसे 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 वो डिग्री फ़ारेनहीट से कम होता जाएगा, यानी आपका यहाँ पे जो है वो प्लॉट करके दिया है आपको 2800 फ़ारेनहीट तक। जैसे 2800 फ़ारेनहीट के ऊपर जो प्योर आयन रहेगा वो जो आपका रहेगा वो प्रॉपर लिक्विड फेज के अंदर होगा। जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा तो देन विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द डेल्टा फेराइट्स, राइट। उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो BCC स्ट्रक्चर रहेगा जो हमने प्रीवियसली पहले डिस्कस किया था। देन विच इज़ फर्दर कूल एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू द गामा, right, gamma ion. Now its structure will be the abscissa structure
एंड विच इज़ द नॉन मैग्नेटिक, वहाँ पे जो आपको स्टील रहता है वो एक तरीके से नॉन मैग्नेटिक स्टील जो है वो आपका रहता है, विच इज़ द काइंड ऑफ द नॉन फेरस एलॉयज, right? Then when it is the further cool approximately to 910 degrees Celsius, and at that time which is the state of the ion which is changed, and which is the alpha ion, right, which is the alpha ion, and the structure which is further changed from the FCC to the BCC, and below the 770 degrees Celsius, the alpha structure is stable, and the structure which is also the BCC structure, and which is the magnetic type of the steel. So this is the cooling curve of the pure ion of the steel. So the definitions of the structure, the various phases that appear on the ion carbon equilibrium phase diagram. काफ़ी सारे जो फेजेस जो है वो आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम्स के अंदर जो है वो फॉर्म होता है, जैसे कि ऑस्टेनाइट हो गया, फेराइट हो गया, परलाइट हो गया, सीमेंटाइट हो गया, मार्टेनसाइट हो गया, लैडिब्रोइट्स हो गया। ऐसे जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो स्ट्रक्चर इस आयन कार्बन डायग्राम के अंदर जो है वो फॉर्म होते हैं। अब वो जो स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होते हैं वो हमें वन बाय वन, यानी ऑस्टेनाइट, फेराइट, उसके माइक्रोस्ट्रक्चर हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो वो कैसे दिखते हैं, राइट, वो चीज़ जो है वो हमें इसके अंदर जो है वो हमें ऑब्जर्व करनी है। तो वेरियस स्ट्रक्चर विच इज़ डेवलप्ड विच इज़ द ऑस्टेनाइट, फेराइट, परलाइट, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट एंड लेडिब्रोइट्स. So the unit cell of the various metals, the figure which is shows that the FCC, यानी ये चीज़ जो हमने प्रीवियसली भी स्टडी कर चुके हैं हम लोग कि इसके अंदर जो है वो तीन ऑस्टेंट हो गया, आपका जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो सकते हैं, या फिर वो BCC हो सकता है, FCC हो सकता है, HCP हो सकता है, वो कोई भी स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके हो सकते हैं। वो जैसे हम लोग वन बाय वन जो है वो उसको देखते जाएंगे तो आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ द स्टील, इस तरीके के जो माइक्रोस्ट्रक्चर्स है वो माइक्रोस्ट्रक्चर आपको स्टील के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब वो कौन सा स्ट्रक्चर है वो आपको माइक्रोस्कोप में देख के आपको पहचानना है, जिसकी आपसे इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके। द डेफिनेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर, द फेराइट इज नोन एज दी अल्फा सॉलिड सॉल्यूशंस। फेराइट जो है वो बेसिकली अल्फा सॉलिड सॉल्यूशन से पहचाना जाता है। इट इज़ एन interstitial solid solutions of the small amount of the carbon which is dissolves in the alpha ion। उसके अंदर ये जो है वो एक तरीके का इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशंस है जिसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन जो है, जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है फेराइट के अंदर काफ़ी कम होते हैं, और उसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है वो BCC स्ट्रक्चर रहता है। द स्टेबल फॉर्म ऑफ द आयन विच इज़ बिलो, ये जो है वो हमें बिलो 912 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमें मिलता है। द मैक्सिमम सॉलिबिलिटी इज 0.025% ऑफ द कार्बन एट, वो जो मैक्सिमम कब वो सॉल्व हो सकता है, तो मैक्सिमम उसका जो सॉल्युबल परसेंटेज रहता है वो 0.025% ऑफ कार्बन एट दी 923 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, एंड इट इज़ डिजोल्व्स ओनली। ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, पर वो डिजोल्व कितना हो सकता है, डिजोल्व यानी 0.008% ऑफ कार्बन एट द रूम टेम्परेचर, उतना ही रूम टेम्परेचर के ऊपर वो डिजोल्व हो सकता है। इट इज़ दी सॉफ्टेस्ट स्ट्रक्चर, ये जो है वो सबसे जो है वो सॉफ्ट तरीके का स्ट्रक्चर है दैट अपीयर्स ऑन दी डायग्राम, जो डायग्राम के ऊपर जो है वो अपीयर होता है, वो एक तरीके का ये फेराइट जो है वो सबसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो है वो स्टील का माना जाता है, राइट। अब आप उसका माइक्रोस्ट्रक्चर, ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैंने आपको जो आपके साथ जो स्क्रीन जो है वो शेयर किया है, उस स्क्रीन के ऊपर आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर इसका माइक्रोस्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो फेराइट का जो माइक्रोस्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो ये आपको वाइट के अंदर एक छोटे छोटे जो है वो ब्लैक लाइंस जो है, जैसे हेयर लाइंस रहते हैं ना, हेयर लाइंस जैसे लाइंस जो है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट। इस तरीके के जो है वो फेराइट का जो है वो आपको स्ट्रक्चर जो है वो आपको वहाँ पे मिल सकता है। उसकी अगर मैं
एवरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो एवरेज प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है वो 14,000 40,000 PSI, राइट, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच जितना जो है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है। उसका एलोंगेशंस जो रहता है वो 40% इन 2 इंच, राइट, वो 2 इंच के अंदर उसका 40% जितना एलोंगेशंस हो सकता है। अगर हार्डनेस की बात करूँ तो रॉकवेल हार्डनेस जो है वो अगर कार्बन की ज़ीरो है तो फिर आपका रॉकवेल ब्रिनल हार्डनेस जो है वो 90 तक जो है वो हार्डन हो सकता है, राइट। दिस इज द बेसिक्स अबाउट द फेराइट स्ट्रक्चर। उसके बाद जो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है जैसे आपका परलाइट हो गया, ऑस्टिनेट्स हो गया, मार्टेनसाइट हो गया, लेडिब्रेट हो गया, वो तो सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमने आयन कार्बन डायग्राम का जो स्टडी स्टार्ट किए, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स थिंग्स जो देखे, आयन के बारे में बेसिक चीज़ जो है वो डिस्कस की है। उसके बाद बेसिक चीज़ के बाद हमने आयन कार्बन डायग्राम्स जो है वो स्टडी किया। बेसिक्स जो है हम लोग आयन कार्बन डायग्राम जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें क्या चीज़ वहाँ से उठ के पता चल सकती है, वो चीज़ हमने डिस्कस की। कैसे जो है वो किस किस टाइप के जो है वो स्ट्रक्चर्स, उसके बाद हमने आयन कार्बन डायग्राम का जो है वो कूलिंग का देखने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की, किस तरीके से रैपिड कूलिंग सिस्टम्स के अंदर कैसे जो है उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशंस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशंस वहाँ पे होता है, वो हमने समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने बेसिक उसके स्ट्रक्चर्स जो है वो समझने की कोशिश की, और उसमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज़ द फेराइट, उसको हमने डिस्कस करने की आज के लेक्चर के अंदर कोशिश की थी। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है उसके सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेक्चर में अगर किसी को किसी भी टाइप की अगर डिफ़िकल्टीज़ है, कोई भी चीज़ अगर किसी को समझ में नहीं आई है, तो आप इसके कमेंट सेक्शंस में मुझे आपके क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ये लेक्चर देखने के बाद आपको जो है वो अपना एनरोलमेंट नंबर जो है उसके कमेंट सेक्शंस में लिखना है, सो विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस, एंड योर अटेंडेंस इज़ मस्ट इन दी ऑनलाइन lectures, right? So I think this is all about the today's lecture. So I think we conclude the lectures with this kind of things. So this is all about today's lecture. Thank you so much.